ओके, सो इट जस्ट लाइक कि जैसे आप अपने घर को लॉक करते हैं ताले से, वैसे ही आप अगर अपने सर्वर को लॉक करते हैं तो वो ताला है साइबर सिक्योरिटी। It's not only about server. हाँ It's जी। not only about not only about server. There maybe students are not aware, but there are so many compliances across world and across the industry. Even if you are in supply chain, you are in defense, you are in health sector, there are so many compliances we are using. If you are using those compliances, no, you are like avoiding whatever current threats are available. Internationally organizations are there, those are working over no the potential threats and trying to avoid it. So compliances and standards are also available. Server providing security to a server is only a tiny part of no, you can say, network security. So That is a as we part. can, yes, sir. So as we can see that it is not just a small part, but it is a big network. So what we are dealing with in cybersecurity. Nothing is far from cybersecurity nowadays. Nothing is far from cybersecurity. Every part of working you are doing, any ERP, wherever you need an internet. Okay, sir. Vikas Kumar Patel has raised the question that what is a threat actually? Vikas, again, in this whole session, I will try to explain the things in very simple words, because if we go into no technical jargon, again, you're going to ask a question and it will continue for, I don't know how many sessions it's required. So just try to understand, if there is an organization, what is the basic goal of an organization? To be profitable, and how they could be. If they are running operation, if they are running an operation, they want to run it smoothly, so that their if continuity is there, business continuity is there, they will achieve the maximum profit, and it is in the favor of organization as well, their employee as well, and everything. So whatever is disturbing the business continuity process, that is a threat, and that could be of so many types. Like if I talk about threats, it can go to like any numbers, like first in terms of only IT world we are talking, that is cyber attack, data breach. Data breach means you people are very familiar with hacking, and you may say telecom outage. If you don't have any you don't have a network, how you running your operation, that is also a threat. Critical infrastructure, there is some infrastructure you have which is so critical that if it is stopped, your operation gonna stop. So in network security, we have standards and we have procedures, best practices available, that we try to segregate our network. If something it is stopped, the parallel thing work, so that we can continue our operation. Supply chain disruption, lack of key skills. Even if you don't have people, as we are conducting this session, why? If I don't have educate amount of people, those are skillful to run my operation, this is also a threat. I have everything, but who will run the thing? Okay. So threat means what is disturbing the continuity process, everything is a threat. Okay, sir. Since the Thank start, I am trying to explain. Sorry. So Okay. it only deliver us that why cyber security is important, because आपने जैसा कहा कि मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर कंपनी की डेटा से लेकर हर चीज जो है वो उस पर थ्रेट हो सकता है, उस पर थ्रेट है, उस पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है हर कंपनी के लिए, जो भी आईटी सेक्टर में बिलोंग करती है या जो भी नेट का यूज कर रहे हैं। कोई भी, इवन मैं पहले ही ये कह चुका हूँ, कोई भी सेक्टर हो, जैसा कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर हमारे सेशन में टाइम मिला तो। पहले तो ये है कि ये सेक्टर आईटी से उसको फ्री करते हैं, कोई भी सेक्टर हो, इवन कोई किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट भी हो यहाँ पे, वो साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकता है। ओके, सो गाइस, ये हमको समझ में आता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ब्रांच पे ही रहें, आप किसी भी ब्रांच से साइबर सिक्योरिटी को लर्न कर सकते हैं, बिकॉज हर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है।
ओके, सो सर, व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप इन साइबर सिक्योरिटी? अगर हम चाहें कि बच्चा सीखना चाहे साइबर सिक्योरिटी को, तो इसमें फ्यूचर क्या है? जैसे हमने देखा है कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, जैसे आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा कहा जाता है कि इसमें काफी अच्छा फ्यूचर है, तो व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप इन साइबर सिक्योरिटी? This is the future. I have only answer. This is the future. Like asking this question itself is like is not relevant. What is the future? This is the future. I told you, every organization need a business continuity. This all about business. आप मोटा मोटा समझें तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है तो आपकी जॉब है, ओके सर, उनका विनय सर ऑपरेशन है, चल रहा है तो ये नेशन नेशन के लिए। या ओके, प्लीज प्लीज Vinay sir प्लीज has प्लीज गो also अहेड। raised the question that now the students are exposed more in online platform. So what are the kinds of risks they are exposed to? Because आज की डेट में हम सब फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, ट्विटर का यूज कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स अपना पर्सनल डेटा हर जगह शेयर कर रहे हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वहां पर्सनल डेटा शेयरिंग होती है। सो कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जिन पे वो एक्सपोज होते हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स का यूज करके? I would like to bring your notice to a separate like field in cybersecurity. I would mention in last what are the fields in students can be exposed to and work. There's a field called privacy. Okay. Data privacy is a field. These platforms, Okay. some echo is coming. Sanjay ji, please mute yourself. Hello, Sanjay ji, please mute yourself. Okay. नहीं, Sanjay, mute yourself, Sanjay. okay. Ma'am, please check. I think उनको ये वॉइस जा नहीं रही है। Yeah, sure. Wait a second. Okay. He has muted himself. Okay, sir. Yes, sir. So what I'm saying, there is a like segment called data privacy. So first of all thing is कि क्या थ्रेट है, पोटेंशियल थ्रेट बढ़ते जाते हैं। आज क्या है वो कल रहेगा, नो दैट विल more critical. You can't predict, so you can't nullify the threats, you can minimize it. Okay. So first and foremost thing, if I don't want to share like my data to someone, कोई क्यों उसको यूज करे, वो क्यों एक्सपोज हो किसी को, ठीक है। अब चॉइस या प्राइवेसी में चीज आती है चॉइस एंड कंसेंट, कि भाई हमसे हमारी चॉइस और या कंसेंट दिया है कि हमने वो डेटा रखने के लिए, वो डेटा ले रहे हैं तो उसका क्या यूज करेंगे। आर दे आर शेयरिंग टेलिंग अस दैट व्हाट इन व्हिच थिंग दे आर यूजिंग। रखेंगे डेटा तो कितने दिन तक रखेंगे, उसको किसी से थर्ड पार्टी से शेयर तो नहीं करते, थर्ड पार्टी से शेयर तो नहीं करते। अब मान लिया कि स्टूडेंट्स ने बनाया अपना डेटा, दे नो दैट दीस मेनी पीपल्स आर रीडिंग नाउ लाइक स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग, so they can sell your data to any online platform called like Byju's or White Junior and somewhere कि भाई like ये लोग पढ़ रहे हैं तो ये आपके पोटेंशियल हो सकते हैं। और हो सकता था कि आप नहीं चाहते कि आपको Byju's से या White Junior से कोई कॉल आए, but it is coming because your number is with them. It's not always like harassment or bullying or like theft of your data. मैं नहीं चाहता हूँ unnecessary को, बट मेरा डेटा है उनके पास, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा Byju's के ऊपर, कोई इंक्वायरी नहीं की, बट मेरा डेटा है उनके पास। तो कंसेंट के बावजूद वो गया, वो डेटा रखेंगे तो कितने दिन रखेंगे, उसको डिस्पोज कैसे करेंगे। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप फेसबुक पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, सो करेंटली आई वुड सजेस्ट कि कभी भी आप पूरा डेट ऑफ बर्थ साल के साथ नहीं लिखो, आप सिर्फ डेट लिखो। ओके। क्योंकि आप मैक्सिमम प्लेसेस में देखोगे, चाहे आपका कार्ड हो,
क्रेडिट कार्ड हो या आपके बैंक के स्टेटमेंट्स हो, बहुत जगह पर आपके पैन नंबर के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ यूज होता है एज अ पासवर्ड। ओके, आधी चीजें आप ऑलरेडी उनको दे ही चुके होते हो। यस सर। सो ये काफी अच्छी चीज सीखने को मिली है। They are even now manipulating elections because of your no like ideology, what you are talking. They know everything. ओके सर, तो द बेसिक क्वेश्चन इज कि हाउ टू स्टार्ट ए करियर इन इट। अगर हम साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एक अलग चीज है, बट एक करियर पर्सपेक्टिव से अगर उसे देखें, सो हाउ कैन वी स्टार्ट ए करियर? मैं वही कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का फील्ड हो, कोई भी बिजनेस हो, तो पहले तो आप इतना वाइड हो जाते हैं कि आप सोचो कि करियर के लिए आप मतलब एक टर्म की तरह नहीं सोचो। मुझे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक फ्रेशर हो, यस सर। तो आप आईटी में या सीएस में एडमिशन लेते हो, तो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन लोगों को होती है कि भाई हम सिर्फ कोडिंग करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे और यही हमारा करियर है। यस सर। तो क्वेश्चन छोड़ दो, अगर आप बहुत एक्सेप्शनल हो, लाइक यू आर गोइंग इनटू गूगल और समथिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज हाउ मच यू आर अर्निंग जी बिल्कुल and how much is the chance in, like to get into a very good company? No. Okay, जी जी so if you are in cyber security, don't think like you write cyber security as a skill. You are a cyber security professional, then you will write your skill set like I am dealing in network security. Means you know about firewalls, you know about digital signature, you know like you know about DLP, you read CCNA. Like CCNA certificates can help you. It's all about network security. Some person can go into application security. Oh, you are like टेस्टिंग इज अ पार्ट कि हम क्या इनपुट देते हैं और क्या आउटपुट आता है, तो हम कोड को चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आप जा सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे सिक्योर होता है। आप वीएपीटी को अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक लोग होते हैं वीएपीटी के लिए, 20-20 साल के करियर होता है उनका। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जैसे आपने थ्रेड्स की बात की, तो इसके लिए स्पेसिफिक टूल्स हैं जो आपके एप्लीकेशन को रन करके, उनके आईपीज को रन करके बताते हैं कि कितने वल्नरेबिलिटी है आपके उसमें, किस लेवल की वल्नरेबिलिटीज हैं आपके उसमें। फिर जिनको उस लेवल की नॉलेज होती है लिनक्स पर या यूनिक्स पे, वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं ना, हाउ टू रिजॉल्व इट। वीएपीटी में करियर बना सकते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा, अभी एक बड़ा इमर्जिंग फील्ड है क्लाउड। यस सर। अब बताओ, आप क्लाउड के लिए जरूरत है क्या सीएस से होने की? नो। हाँ जी हाँ जी। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच, डू द like and complete it in 7-8 months. Read like hell for 8-10 hours in a day and be a cloud professional. Be a cloud professional. And hell out of money. मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप किस लेवल पे जाएंगे, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। आप सोच नहीं सकते कि अगर अमेज़न आपको हायर करेगा तो कितना पैसा देगा। एंड आपने फ्यूचर के लिए पूछा और जॉब्स उसमें कितने हैं, वो मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि द एवरीथिंग इज माइग्रेटिंग टू क्लाउड नाउ। यस सर, बिल्कुल। आप एसएपी में करियर बनाते थे। अब नाउ जो एसएपी में पहले लोग काम करते थे, इसी वो आउटडेटेड हो जाएगा। एसएपी ने खुद कह दिया है कि भाई 25 के बाद हम उसको सपोर्ट नहीं देंगे। नाउ एसएपी हाना एंड क्वेरी इज इन पिक्चर। हाना क्या है? वो एक डेटाबेस है जो क्लाउड के ऊपर काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज फास्टर। आपके पास अगर क्लाउड का नॉलेज है, फ्यूचर में 4 साल काम करने के बाद अगर एसएपी भी पकड़ते हैं आप, तो वहां भी बेटर हैं आप। कोई भी क्लाउड पकड़ लो, आप माइक्रोसॉफ्ट का पकड़ लो या गूगल का पकड़ लो, AWS, दीज आर द बिग मार्केट प्लेयर। तो पूरा आप किसी क्लाइंट को जाके बोल सकते हो कि भाई मुझे इसमें ना 3-4 साल का एक्सपीरियंस है और लाइक मैं आपको माइग्रेट करके दूंगा। सो मैं भी आपको बोल नहीं सकता कि कितना पैसा मिलता है। बड़े बड़े सेटअप मूव कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू कीप like 10,000 square feet area, 4 stories building and everything for क्या कहते हैं आपको, डेटा सेंटर के लिए। सब कुछ है क्लाउड पे। आप देख लो, पहले वाटरफॉल मॉडल करते थे हम।
फिर हम लीन हुए, अजाइल हुए। नाउ जब डेवऑप्स पे जाते हैं तो क्या होता है, सब कुछ क्लाउड है। ओके हाँ, डीबीटीआई सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो प्राइवेसी में करियर है। मैंने जैसे बाकी चीजों में बताया, ऑडिट एंड कंप्लायंस में मैंने बोला आपको कि स्टैंडर्ड्स हैं काफी इंटरनेशनल। आप आईएसओ बेसिक जो होता है वो आईएसओ 27001 है, अगर आप आईटी के सेक्टर में देखें तो एज ए लीड ऑडिटर यू कैन स्टार्ट योर करियर। यू नीड ए आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर दैट, लीड इम्प्लीमेंटर एंड लीड ऑडिटर। सो हर चीज में कुछ कुछ चाहिए फॉर स्टार्टिंग और करियर। फिर आप काम करेंगे, फिर आपको समझ में आता जाएगा कि किस डायरेक्शन में मुझे और आगे करियर बनाना है। सो यही है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, बहुत आगे है। मशीन लर्निंग पढ़नी है आपको, आप पाइथन में करो 4-5 महीने मेहनत, 6 महीने मेहनत करो, यू विल गेट इट। और बहुत बड़ा फील्ड है जिसको बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि क्या है यार, ये टेक्निकल सपोर्ट है। यू कांट इमेजिन कि कितना पे कर रहे हैं लोग। आई माई सेल्फ हैंडलिंग ए $10 million अकाउंट ओवर माइक्रोसॉफ्ट। थ्रेट हंटिंग के ऊपर वी आर हायरिंग पीपल। बल्क ईमेल, स्पैम, फिशिंग, ईमेल मैसेजिंग, ये इनके ऊपर बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, जिसको थ्रेट हंटिंग बोलते हैं। ये बहुत बहुत सारा करियर है। आई एम श्योर कि ये जो चीजें आपने अभी बताई है, जो अलग अलग कैरियर पर्सपेक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ जितनी जो वर्किंग आपने बताई है कि इस तरह की वर्किंग यहाँ पे होती है, बेसिकली अभी तक बच्चों को आई थिंक ये चीजें तो पता नहीं होंगी कि एक साइबर सिक्योरिटी, हमने यूजुअली साइबर सिक्योरिटी जो सुनते हैं यहाँ पे, तो यूजुअली उसे कंपेयर कर लेते हैं हैकिंग से, उसे कंपेयर कर लेते हैं कि इसमें कुछ हैकिंग से रिलेटेड होगा या फिर उनसे बचाने का होगा। लेकिन जो आपने डीप नॉलेज आज दी है कि नहीं, इसमें अलग अलग कैरियर है। एक बल्क एसएमएस ईमेल पर भी आपने कहा कि उसमें भी हमको एक पूरा का पूरा वर्किंग होता है। तो ये आई थिंक आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आगे जाकर, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाना चाहें तो क्या क्या आप लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। Means like आई you थिंक can you Ankita, I just want to give an input. यस Yes, you people are in training as well. You can counsel them. You can counsel them and you can speak with them and on their knowledge now in which they are good. So उस बेसिस पे आप आगे आगे कर सकते हो उनके साथ काम। अगर कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा है तो पाइथन पे काम करा के में इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। अगर किसी का नेटवर्किंग बेटर है तो थ्रेट हंटिंग में जा सकता है। तो बहुत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इनके साथ। हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्कोप होता है, बट यू जस्ट नीड टू गिव देम ए पाथ। और फ्यूचर की वो नहीं सोचे। डेटा साइंसेस में छोटी छोटी कंपनियां कितना पैसा देती हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। फ्रेशर 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख पे काम करते हैं। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल फिगर दे रहा हूँ। कंपनी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन डेटा इतना इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी बैंक। मतलब डेटा इज, प्राइम मिनिस्टर इवन सेड डेटा इज न्यू गोल्ड। सो यही सब कुछ है। सर, तो जो सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सबके माइंड में, सबसे पहले जो खासकर स्टूडेंट्स हैं, कि स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब हाउ डू वी लर्न इट प्रॉपरली, कैसे स्टार्ट करें, किन चीजों से स्टार्ट करें। बिकॉज जैसे हम अगर वेब डेवलपमेंट में जाए तो वहां पे हमें HTML CSS से स्टार्ट करना होता है। हम अगर किसी और चीज को सीख रहे हैं तो हमें उसका एक बेसिक पता होता है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इट इज अ डिफरेंट फील्ड, एक साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है, तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे किया जाना चाहिए इसे। उससे पहले सर जस्ट मैं 2 सेकंड लूंगा। पर वो द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आखिरी में इस सेशन के बाद सर से रिपीट करूंगा और उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज सेशन के बाद ही सर से लेंगे। ओके, ताकि ये सेशन जो है कंटिन्यूअसली फ्लो में चलता रहे। ओके ओके सर। सो द क्वेश्चन इज ओनली दैट कि कैसे स्टार्ट किया जाए इसे। जैसे मैंने कहा कि आप लोग इनसे बातें करो, काउंसिल करो। सो यू पीपल शुड create a module, work on that. It's your responsibility as well. Spend 15 days, 20 days over that and create a beginner module. सर बट व्हाट डू यू सजेस्ट राइट नाउ कि स्टूडेंट्स को कहां से एक बेसिक को कर सकते हैं, क्या-क्या सीखना होगा उन्हें? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जिसमें अच्छे हैं उस डायरेक्शन में बढ़े। मैंने डायरेक्शंस बताए उनको, और वो अगर कहीं जाना चाहते हैं, अगर आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो एक बिगिनर मॉड्यूल प्रिपेयर करके उनको आप सब कुछ शेयर करो। सो सारे अब 1 घंटे में मैं सब कुछ नहीं बता सकता, बट if you are taking a session of like 2 hours for for 2 weeks at least, they will get an idea
I will say it as a beginner guide to everything, where you are not teaching a specific technology, where you are telling them that this is this. These are the whole spectrum of cybersecurity, and this is this. From there, they can choose their path. सर, तो एक बेसिक क्वेश्चन जो मेरे मन में भी हमेशा आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी? बेसिक डिफरेंस, जैसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी नहीं, साइबर सिक्योरिटी के लिए आपने थ्रेट की बात की, तो हैकिंग एक तरह का थ्रेट है जो आपकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। मैंने आपको भी बात की VAPT के ऊपर कि टूल्स हैं जो बताते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या है आपके सिस्टम में, वल्नरेबिलिटी क्या है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कुछ तो कमी है, वल्नरेबिलिटी मींस कमी, कुछ कमी है जो सिक्योर नहीं है, वहां आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो हैकर्स डू दैट। आपने बहुत बार देखा होगा कि इट्स वेरी फेमस कि एप्पल हैकाथन चलाता है कि आप आओ एंड ब्रेक आवर कोड and we will give you $1 million. Yes, sir. They are so they have a feeling कि हाँ बेस्ट चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो हैकिंग वही आपकी जो भी वल्नरेबिलिटी है, हैकर उसको एक्सप्लॉइट करता है। और वही उसमें आप देखेंगे कि कुछ व्हाइट हैकर्स होते हैं, कुछ ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। तो ब्लैक हैट वालों का काम है कि भाई आपका किसी तरह से वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट किया तो आपका मतलब मैं उस फील्ड में भी बाद में आऊंगा, थोड़ा रुक जाते हैं अभी, फिर मैं उसमें आता हूँ। तो आप सिस्टम को बिगाड़ दिया, सिस्टम खराब कर दिया। लाइक आप इलेक्ट्रिकल ग्रिड चला रहे हैं, वो एक प्लानिंग से चल रहा है, अगर उसको खराब कर दिया तो पूरे शहर की बिजली यहाँ कट रही है, ट्रैफिक सिग्नल डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो उनको उससे कुछ मिल नहीं रहा है, बट दे डू इट। some hackers are they will steal the data and like blackmail the bank, blackmail the government, ये चीजें करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो इसके अपोजिट हैं, दे वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन, और वो कर करके ऑर्गेनाइजेशन को बताते रहते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, इसको ठीक कर। क्योंकि अगर ये चीजें उनके बदले कोई ब्लैक हैट वाला करेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये कमी ढूंढते हैं। और बस मैं एक पॉइंट पे बस 2 मिनट लूंगा। एक चीज बच्चे अगर सर्च करेंगे तो उसको ट्रायड कहते हैं, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन 3 चीजों पे ही पूरा सिक्योरिटी सिस्टम टिका हुआ है। तो अगर किसी ने आपका डेटा चोरी कर लिया तो मीन्स आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई। इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो चीज जैसे थी वैसे नहीं है, मतलब छेड़छाड़ कर दी आपने उससे, तो वो है इंटीग्रिटी का ब्रीच। अवेलेबिलिटी का ब्रीच क्या है कि कुछ जरूरी था आपके सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए लेकिन नहीं है, या उसको वहां से हटा दिया गया। सो अगर ये तीनों चीजों के पैमाने पे हम देखें और सिस्टम सिक्योर है CIA के बेसिस पे, तो सिस्टम सिक्योर है। और बाकी मैंने हैकिंग के बारे में बताया आपको। सर, तो एक सवाल ये है कि अगर हमें जैसे ब्लैक हैट और व्हाइट हैट का हमने अंतर तो समझ लिया कि बेसिकली ये करते क्या है, और एक्चुअली व्हाइट हैट हैकर्स भी आप कह सकते हैं कि वो भी एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, एक फ्यूचर स्कोप है उनके लिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी है सीधा सीधा। कहते हैं ना एथिकल हैकिंग सी करियर है, एथिकल हैकिंग। जी जी। अगर मैं एक पर्सन हूँ और मैं अपनी किसी फील्ड पे वर्क कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मुझे अपनी फील्ड को छोड़कर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी फील्ड पे कुछ खास मजा नहीं आ रहा है या फिर मैं इसमें उतना अच्छा नहीं कर पा रहा और मुझे साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे उस पर स्विच करना है, तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है सर? और उसके साथ साथ कितना टाइम ले सकता है मुझे एक प्रोफेशनल बनने के लिए, बिकॉज कंपनी रिक्वायर्स प्रोफेशनल राइट नाउ, तो कितना टाइम लग सकता है एक प्रोफेशनल बनने के लिए, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर मैं अपनी कोई दूसरी फील्ड को छोड़कर उस पर ज्वाइन करूं? अंकित, पहले तो हम जैसे लोगों ने जिन्होंने करियर 12 साल 15 साल या उससे पहले स्टार्ट किया है, उनके एग्जांपल्स लेके मैं आपको बता दूं कि वी हैव दैट टाइम डेवलपमेंट वाज अ वेरी बूमिंग फील्ड। तो हमने सबने डेवलपमेंट में और क्या कहते हैं आपको, टीम लीडर और एनालिस्ट काम स्टार्ट किया। देन वी बिकम प्रोग्राम मैनेजर्स, टीम में मैनेज की, इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जिसमें हार्डवेयर का भी बहुत काम था, स्पेसिफिकेशंस थे।
But suddenly, my last 4-5 years, when I worked in KPMG and Deloitte specifically, I get into touch with cyber strategy. इंडिया में बहुत ज्यादा लोग फॉरेन में थे, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग वो नहीं थे इसके बारे में अवेयर कि भाई कुछ रिस्क एडवाइजरी बनाना है हमको, या रिस्क एडवाइजरी का बोर्ड बनाना है हमको। पहले सीसो होता ही नहीं था, एक सीटीओ होता था, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अब एक सीसो होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ओके, अब एक और अलग चीज आने लगी, सीरो, चीफ इंफॉर्मेशन रिस्क ऑफिसर। ये क्या क्या आपके पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, जिससे कंपनी को क्या क्या नुकसान हो सकता है। सो हमने भी वही पार्ट ट्रेवल किया है, हमने भी वही पार्ट ट्रेवल किया। माइसेल्फ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएशन था मेरा, बाद में मैनेजमेंट भी ऐड हुआ उसमें। खैर वो एक सेपरेट बात है। आप जब स्विच करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि आप किसी एक चीज को पकड़ो, किसी एक चीज को पकड़ो। आप डेटा साइंस पकड़ लो, जॉब में रहते हुए उसको पढ़ो, आप अपने जॉब में रहते हुए आप उसको पढ़ो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कि छोड़ दो, आपको कोई आईएएस का प्रिपरेशन नहीं करना है, तो रोज 3-4 घंटे लगाओ आप, और वीकेंड्स लगाओ अपने पूरे, वीकेंड्स का कोई बैच ज्वाइन करो कहीं पे, और वहां पर पढ़ो उसको। बाकी 3-4 घंटे, चूंकि आप दूसरे उससे हो, दूसरे फील्ड से हो, तो जो आप वीकेंड में पढ़ते हो उसको आप 3-4 घंटे दो, वीक 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप वीकडेज में दे सकते हो। और जब एक कंप्लीट कुछ आप प्रिपेयर कर लेते हो, जो आप लिख सको सीवी में कि मैं ये काम आता है मुझे, तब स्टार्ट ट्राइंग लाइक इन दैट एरिया, और सडनली एक स्मूथ स्विच हो जाएगा आपका। आप डेटा साइंस पकड़ लो, आप क्लाउड पकड़ लो। क्लाउड में कहीं से भी जरूरत नहीं होती कि एज आई कैन टेल यू, आई एम नॉट ए क्लाउड प्रोफेशनल, है ना। मैं गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंसेस देखता हूँ, जीआरसी। अब इनके लिए नया टर्म है, बिकॉज इट टेक्स ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट क्लाउड के ऊपर बिल्कुल सेपरेट टीम्स होती हैं जो क्लाउड पे ही काम करती हैं, तो एज ए फ्रेशर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तब आगे चल के जब उसमें आप 2-3 साल काम कर जाओगे ना, तो जिस फील्ड से आप आए हो वहां भी क्लाउड का यूज है, तो उस फील्ड का जब कोई क्लाइंट होगा तो आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मान लो एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में थे आप, अब आप क्लाउड पे आए, या बाइक मैन्युफैक्चरिंग पे थे, आप क्लाउड पे आए। अब कल को बजाज मोटर्स में कोई क्लाउड का माइग्रेशन आता है, तो कंपनी विल आस्क यू, यार तुमको तो एक्सपीरियंस है उसका, वर्क विद देम, आप देखो उसको। सो आगे पाथ कैसे बनेगा उसको यहाँ से कहना बिल्कुल, कि आगे 10 साल में क्या होगा वो तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन स्मूथ ट्रांजिशन यही है कि आप कोई से भी एक चीज पकड़ लो, एक फील्ड पकड़ लो, और उसमें स्मूथ ट्रांजिशन लो। आप 6 महीना उस पर स्पेंड करो, और फिर उसमें आगे आप क्लाउड पे पढ़ के सर्टिफिकेशन करके गेट इनटू दैट फील्ड। इफ यू वांट टू गो अहेड तो क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं लोग, और एआईएमएल जैसे आपने कहा, तो अगर अगर कोई चाहता है तो पहले पाइथन पे जाए, इट्स अ बेसिक थिंग, और फिर मशीन लर्निंग में एंट्री करे। बहुत सारी चीजें हैं, स्मार्ट सिटीज में लोग आईओटी का बहुत काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इतनी नहीं है कि आपके अभी मतलब कॉलेज के सिलेबस में तो है ही नहीं, तो हर कोई आप समझिए कि बाहर ही पढ़ रहा है। एआईएमएल कहीं एंट्री भी हो रही है तो मास्टर्स में हो रही है, मास्टर डिग्री में हो रही है। तो इन्हीं भी ग्रेजुएशन तक जब किसी के पास नहीं है तो आप पढ़ रहे हो बाहर, तो क्या गलत कर रहे हो? बाहर पढ़ो, तैयारी करो, एंड गेट इनटू दैट। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो कम से कम 6 महीने आपको एक फील्ड पकड़ के उस पर वर्क करना होगा। आप वीकेंड्स में भी वर्क कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जैसे आप उस पर एक थोड़ा प्रोफेशनल बनते हैं तो आप फिर उस फील्ड पे बेटर अपने आप को स्विच हाँ, कर सकते हैं। एक आध इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन हर फील्ड से रिलेटेड है, आप उसको करोगे तो आपको खुद जॉब अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो गाइज, ये तो एक इम्पोर्टेंट सबको समझ में आती है कि हाँ, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, बिकॉज डिग्री के साथ साथ आपको सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत पड़ती ही है। बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और किसी भी चीज को नहीं, एक्चुअली उसका मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ, या मेरा एचआर मैंने एक रिक्वायरमेंट दी, वो शॉर्टलिस्ट कर रहा है हाँ जी, रिज्यूमे, तो कैसे पता चलेगा कि मैं इसी फील्ड वाले को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, या मैं अपना एफर्ट बर्बाद करता रहूंगा इंटरव्यू ले ले? जी सर, ये बिकॉज एक एक बड़ी कंपनी में 1-1 घंटा कीमती होता है। अगर मेरे जैसे किसी आदमी के 1 घंटे की बिलिंग 8,000 या 10,000 रुपए है, और मैंने 5 लोगों का या 7 लोगों का इंटरव्यू दिन में लिया जिनका रिज्यूमे इरेलीवेंट था, तो आप सोचो, मेरी मेरी फॉर्म के लिए तो 50,000 रुपए वेस्ट हुए।
एक भी बंदा नहीं हायर हो पाया। श्योर सर। सो ये आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात पता चली होगी कि गाइस सर्टिफिकेशन एक्चुअल में हेल्प कहाँ करते हैं, कि जब भी आप इंटरव्यूज में जा रहे हैं तो एचआर को पता कैसे चलेगा कि आपको ये आता है। देखिए रिज्यूम में तो कोई भी लिख सकता है कि मुझे एचटीएमएल आता है, मुझे साइबर सिक्योरिटी में कुछ नॉलेज है, मुझे क्लाउड में नॉलेज है, लेकिन वो प्रूफ कहाँ से आप लेकर आएंगे? या तो आप उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस रखें या फिर आप उसका सर्टिफिकेशन रखें, तब जाके कंपनीज को समझ में आता है कि हाँ यू हैव रियली एंगेज्ड विद दिस प्रोसेस। सो सर, तो जैसा कि हमने अभी देखा एक फ्यूचर स्कोप हमने समझा कि साइबर सिक्योरिटी में एक वास्ट स्कोप है। आप सिर्फ एक फील्ड को ही नहीं पकड़ सकते, आपके पास कई अलग अलग फील्ड्स हैं और उसमें क्लाउड भी, जैसा आपने बताया, एक काफी इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग सेक्टर है। और एट प्रेजेंट तो क्लाउड में आई थिंक कोई भी ज्यादा आपको ट्रेनिंग सेंटर्स भी नहीं मिलेंगे जो आपको ज्यादा इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली, हमने कैरियर को स्टार्ट कैसे करना है ये भी समझा। आप जो भी कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो कुछ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये हमारे करिकुलम में नहीं होते हैं, बट अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा 6 महीने का एक ट्रांजिशन लेना होगा और उसके बाद आप जो है डायरेक्टली इसमें काम कर सकते हैं। सर, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो सबसे स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले चलता है आई थिंक, क्योंकि उनको सबसे पहला कभी भी कोई फील्ड पकड़ने से पहले ये होता है कि हमें पैसा कितना मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज टू जस्ट गेट ए ह्यूज सैलरी। सो ये एक स्टार्टिंग और इसकी एंड, ये एंड तो सर लिमिटलेस है, आई नो ये काफी एक लिमिटलेस चीज है, पर एक स्टार्ट कहाँ से हो सकती है? बच्चे को कितने टाइम का एक मेहनत उसे लगेगी जिससे फिर उसे कुछ एक अच्छी स्टार्ट मिल जाए? मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि अगर अभी मैं सीएस और आईटी वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, अगर आई डोंट नो कि मैं किन से बात कर रहा हूँ, बट उनसे बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे बस इतना कहूंगा कि पहली चीज जो अंकित ने क्वेश्चन पूछा है उस पर आएंगे। पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जितनी जल्दी आप करियर शुरू करें वो इम्पोर्टेंट है। आप लैग करते जाएंगे तो आपसे कल कोई पूछेगा भाई 2 साल बैठ के क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो आपको मौके ज्यादा मिलेंगे तो आप कन्वर्ट ज्यादा कर पाओगे। अगर कहीं 100 सीटें हैं, 10,000 लोग ट्राई कर रहे हैं, तो आपके चांसेस कम है। ये इमर्जिंग फील्ड है। आपको मैं मतलब लाइक प्रोफेशनल बेसिस पे प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हमारे एक्सपीरियंस पे, जबकि पिरामिड स्ट्रक्चर है, कम होती जाती हैं पोजीशंस। हमारे एक्सपीरियंस पे मुझे दिन में 2 या 3 कॉल्स आती हैं टू स्विच ए जॉब। एवरीबडी नीड कि 30 दिन में आ जाइए, 15 दिन में आ जाइए, एज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर लीजिए। तो एक तो मौके ज्यादा हैं, दूसरा जैसे आपने सैलरी का पूछा, तो जो भी ट्रेडिशनल चीजों में पैसा मिल रहा है उससे बेहतर ही मिलेगा आपको। आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो फील्ड्स हैं उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें किस में बेहतर मिलेगा। तो उसके अंदर ये है कि डेटा साइंसेस में और क्लाउड में ज्यादा पैसा है, बट ये है कि डेटा साइंसेस में ये है कि लाइक मेनी टाइम्स यू नीड टू बी वेरी एनालिटिकल। आपका मैथमेटिक्स का पॉइंट जो है, स्टैटिस्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग, ये भी बेटर होना चाहिए। वो आपको कोई एक दिन में दे नहीं सकता, इधर आप एनालिटिकल हो या नहीं हो, दो ही बातें हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें एक से दूसरे का कंपेयर करके, और अब बहुत चीजें आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती हैं, आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करती हैं। लेकिन एक चीज तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि ट्रेडिशनल फील्ड में जो भी आज पैसा मिल रहा है उससे इजी अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, उनसे ज्यादा पैसा है। सो गाइस, डेटा साइंस में तो अंकित मैं आपको बताऊं, लाइक बैंक्स में एचएसबीसी या आप बहुत सारे बैंक्स में, लाइक नॉर्मल बच्चे सुनते भी नहीं, उनको सिर्फ टीसीएस एचसीएल और इन्फी पता होता है। डेटा साइंसेस में वो लोग फ्रेशर को एज एनालिस्ट 12-12 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। यू नीड टू क्रैक द इंटरव्यू। आपको बस दिखाना है आपकी लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी कितनी। सर, तो जैसा अभी आप सबने एक चीज समझी कि यहाँ पे सैलरी की तो बात हम नहीं करें तो बेटर है। हम अगर लर्निंग करते हैं तो उसके बाद सैलरीज पे हम फिर वहां पर सोच भी नहीं सकते जितनी हमें अपॉर्चुनिटीज और सैलरी मिलेंगी। दूसरा जो एक बात समझ में आती है वो ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो यहाँ पे फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बस कंपनीज में डिमांड है पर वही सप्लाई इम्पोर्टेंट। नहीं। तो अगर आपने यहाँ पे सप्लाई दी, अगर आप रेडी हैं, तो कंपनीज आपको लेने के लिए भी उतनी ही रेडी हैं।
और ऐसा सेक्टर जहां पे अगर कंपनीज रेडी हैं तुरंत आपको लेने के लिए, तो आई थिंक ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी के लिए भी. Sir, there is one more question with by one of our student. His name is Parav Pathak, and he asked that please let us know how can we secure our static data of our government organization like railways and from unethical hacking. हम अपने डेटा को कैसे सिक्योर करें जो हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम दीज हैकिंग. नहीं, लाइक आप कैसे सिक्योर करें या गवर्नमेंट कैसे सिक्योर करती है? सर हिज क्वेश्चन इज आई थिंक कि हम कैसे सिक्योर करें. सी पॉइंट इज, गवर्नमेंट का डेटा हो, किसी का डेटा हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि कैसे सिक्योर होगा. एक तो हम हमेशा देखते हैं कि डेटा का क्लासिफिकेशन होता है. हम कहीं भी जाते हैं एज ए कंसल्टेंट और किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम बताते हैं कि आप कैसे अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, तो एक तो डेटा का क्लासिफिकेशन होता है. हम देखते हैं कि क्या पब्लिक डेटा है, प्राइवेट डेटा क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या हो सकता है, और सबसे एंड में क्रिटिकल डेटा क्या है. 4 चीजें हैं. पब्लिक डेटा जो है वो इन्होंने स्पेसिफिक रेलवे के लिए पूछा, तो कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कब से कब चलेंगी एंड ऑल, कितने कोचेस की हैं, कितने किलोमीटर रोज मतलब चलती हैं, ये सब पब्लिक डेटा हो सकता है. प्राइवेट डेटा हो गया कि भाई आपने रिजर्वेशन किया, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कौन सी तारीख को जा रहे हो, टिकट, ये सब. कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है कि भाई लाइक ये एम्प्लॉय है, कितने एम्प्लॉय हैं उनकी, मैं एक मोटा मोटा दे रहा हूँ, बाकी जो रेलवे में होंगे स्पेसिफिकली वो ज्यादा बताएंगे. हाँ, तो मैं आपको एक डेटा सिक्योरिटी का परव्यू दे रहा हूँ कि क्रिटिकल क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियल डेटा में कि भाई कितने एम्प्लॉय हैं, कौन सी पोजीशन पे हैं, कब रिटायर होंगे, उनकी सैलरी कितनी है, पीएफ कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. भाई मेरा डेटा कोई क्यों लेगा, सो ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग. अब आया क्रिटिकल डेटा में कि भाई कौन सी कोचेस कहाँ से ली जा रही हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, फाइनली कब स्क्रैप होंगी, क्योंकि आप जानते हो स्क्रैप बहुत बड़ा बिजनेस है. यस सर. आप हर फील्ड में जब जाएंगे उनके मैनेजमेंट से बात करेंगे, हर जगह हम जब भी जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड में है ये, तो मैनेजमेंट आपको बताएगा कि भाई हम ये बचाना चाहते हैं, ये यहाँ पर चोरी होती है. इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल है. इंजन का नंबर क्या है, ठीक है, कहाँ से वो डीजल परचेज करते हैं, आगे के उनके एसएलए क्या है, जहां से वो कंपनी से ले रहे हैं उसका पाथ क्या है. तो ये डेटा का क्लासिफिकेशन होता है, उस हिसाब से हम डेटा को रखते हैं. दूसरा, हमारा जो यूजुअली जो 2 मैंने बताया आपको, कॉन्फिडेंशियल और क्रिटिकल डेटा, तो क्रिटिकल डेटा को लोग हमेशा ही इंटरनेट पे यूज के बाद कोशिश करते हैं कि इंटरनेट पे रहे. और गवर्नमेंट में मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होते हैं वो आईपी व्हाइट लिस्ट करके होते हैं. व्हाइट लिस्टिंग ऑफ आईपी मींस वो ये नहीं है कि लाइक कोई भी एंट्री कर जाएगा उस आईपी में. एक आईपी से अगर किसी और को कम्युनिकेट करना है, मतलब मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी लेवल से दूसरी सेक्रेटरी को अगर ये जो यहाँ के डीआरएम अगर किसी और डीआरएम को कोई मेल भेज रहा है, तो एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भेजी जाती है, वो आईपी व्हाइट लिस्ट होती है, उससे भेजा जा सकता है. मतलब सिंगल पाथ है, उसमें और कोई एंट्री नहीं कर सकता. और वो इंटरनेट पे रखी जाती है. अगर कोई डेटा आपने इंटरनेट पे रखा नहीं है तो ऐसे ही उसमें हैकिंग हो ही नहीं सकती. तो क्रिटिकल डेटा का हमेशा ही भेजा जाता है तो आईपी व्हाइटलिस्ट करके भेजा जाता है और हमेशा ही उसको अलग रखा जाता है. कॉन्फिडेंशियल डेटा का ये है कि जो मैंने कहा इंटीग्रिटी वाली चीज की, बिगाड़ दिया, किसी ने चोरी कर दिया, उसको करना कुछ नहीं है उसका, लेकिन बिगाड़ दिया, तो हमेशा ही आप देखेंगे कि जो कुछ भी डेटा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि हर चीज का एक डीसी होता है, डेटा सेंटर, और उसी चीज का उसी कंपनी का एक डीआर होता है, डेटा रिकवरी. और उसका एक रूल है कि कभी भी उसको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में नहीं रखा जाता. अगर किसी का डीसी दिल्ली में है तो मैक्सिमम आप देखेंगे, मैं गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई वर्कड इन पब्लिक सेक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. होम अफेयर्स के लिए भी काम किया. होम मिनिस्ट्री से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा और कहीं नहीं है. आई हैव पर्सनली डिजिटाइज्ड मोर देन लाइक आई कैन से 25,000 एफआईआर्स इन अ डिजिटल फॉर्मेट. सो आप देखेंगे गवर्नमेंट का जो डीसी है इधर यहाँ पर है दिल्ली में, और उनका डीआर हैदराबाद में होता है. अगर मान लीजिए दिल्ली में अर्थक्वेक आ गया और वो डेटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया, फायर आ गया, कुछ भी हो गया,
सर्वर्स जल गए सारे, तो वो सारा का सारा डेटा हैदराबाद में भी होगा। अब ये तो अलग बात है कि पूरे इंडिया में कुछ ऐसा आ जाए, तो वो तो जैसे अभी पैंडेमिक आया हुआ है, जैसे किसी को नहीं पता, वो अलग बात है, बट इज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। फिर गवर्नमेंट का अपना पर्सनल क्लाउड है, सीडैक उसको डील करता है। दो बातें मैं लोगों को बता दूं, इनका जो गवर्नमेंट का जो एनआईटी इंटरनेट है वो एनआईसी से प्रोवाइडेड है। वो यूज नहीं करते google.com और समथिंग, nic.in यूज करते हैं, gov.in यूज करते हैं, हायर लेवल पे जो ऑफिसर्स यूज करते हैं वो gov.in, ये आपके यूज की चीजें नहीं है, बट आई वर्कड इन गवर्नमेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो gov.in यूज होता है, बाकी जो लोग नीचे यूज करते हैं टेक्निकल ऑफिसर्स, वो nic.in यूज करते हैं। एनआईसी गवर्नमेंट का खुद का ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, सीडैक उनके लिए डील करता है प्रोडक्ट्स में, एप्लीकेशंस में, तो सीडैक का अपना क्लाउड है जिसको मेघराज कहते हैं, उनके क्लाउड पे उनकी चीजें रहती हैं। सो दे आर नॉट यूजिंग एनी लाइक वेंडर लाइक AWS और माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह का कुछ भी वो कॉन्फिडेंशियल डेटा के लिए यूज नहीं। आई होप गाइज अब कभी भी आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन देखेंगे तो वहां पे .nic.in या फिर .gov.in देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक्चुअली उसका यूज क्या है। सर एक और क्वेश्चन आया है नूपुर मैम का। इनका क्वेश्चन है, Raspberry Pi once configured helps in ad blocking and preventing data from third party. So how learning it course will be helpful in cyber security? Come again, I didn't get the question. So Raspberry Pi once configured helps in ad blocking and preventing data from third party. जो Raspberry, तो ये कितना साइबर सिक्योरिटी में कितना हेल्प कर सकता है सर ये जो कोर्स है? नहीं, देखो आप, एक ये मतलब अभी इनके लेवल पे, फ्रेशर के लेवल पे ज्यादा वो आएगा नहीं इनकी हायरिंग में, बिकॉज TPRA में जो सेपरेट फील्ड, थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, और मैनेजर लेवल पे इम्पोर्टेंट है ये कि हाउ यू प्रिपेयर SLA विद लाइक थर्ड पार्टी वेंडर, हाउ मेनी वेंडर्स आर वर्किंग फॉर यू। बट एज ए ऑडिटर अगर आप करियर शुरू करते हैं ISO ऑडिटिंग में वगैरह वगैरह, तो वहां पे आपको हाउ टू डील विद द थर्ड पार्टी, वहां पे आपको वो करना पड़ेगा डील। और दूसरा, जो मैंने पीछे भी कहा, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं कि अगर आपने फाउंड किया कि भाई ये डेटा जो है मेरा क्रिटिकल है, तो स्टैंडर्ड रूल है कि आप उसको थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत पहले अभी डिस्कशन के स्टार्ट में ही कहा प्रिवेसी के मामले में कि भाई मेरा कोई डेटा अगर किसी ने लिया तो थर्ड पार्टी के साथ शेयर तो नहीं कर रहा, और कर रहा है तो मुझे बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो जैसे कोई PNB का एक ऑडिट किया था मैंने, उनके लिए SBI के साथ काम किया हमने, हजारों वेंडर हैं, बट कौन से वेंडर को कहाँ तक का एक्सेस है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इसके लिए एक आई वुड सजेस्ट हर टू एक्सप्लोर, एक ऑडिट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, इसको SOC 2 बोलते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए अगर आई थिंक सर का नेटवर्क का कुछ इशू आया है। हेलो कुणाल सर, I think there is some network issue with sir. Just let. Okay. He is back now. Is it okay now? Hello. Yes sir. हाँ, अब ठीक है। हाँ, ओके सर, यस सर। हाँ, तो मैं इनको ये वही बताना चाह रहा था कि SOC 2 सर्टिफिकेशन होता है, तो जो भी थर्ड पार्टी वेंडर इस एरिया में काम करना चाह रहा है किसी के साथ, वो SOC 2 का सर्टिफिकेट लेता है। उसमें बहुत सारे अटेस्टेशन होते हैं। आपको AICPA करके ऑर्गेनाइजेशन है, आप SOC 2 में फाइंड कर सकते हैं। SOC 2 टाइप 2 ऑडिट इसमें मेन है, SOC 1, SOC 2, SOC 3, ये पूरा ही, जैसे अच्छी बात है इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये पूरा ही डिफरेंट डोमेन है। एज अ SOC 2 ऑडिटर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर करियर, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ए करियर। तो क्या कहते हैं, वहां पे आप ये चीज हुई है कि नहीं हुई है उसका एविडेंस लिया जाता है,
अगर कोई कंपनी कह रही है कि मैं ये काम करता हूँ, तो सर्टिफिकेट के साथ, सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप ऑडिटर को अटेस्टेशन देते हो, मतलब एविडेंस देते हो, ठीक है। और वो एविडेंस के बेसिस पे तो आजकल कंपनियां ये ज्यादा चेक नहीं करती, वो कहती हैं सॉक 2 का सर्टिफिकेट ले आओ भाई, हम आपको काम दें। सर सबसे पहले तो गाइस, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग ड्रॉप बॉक्स पे अपने क्वेश्चन मुझे मैसेज करिए, ताकि मैं सर से आपके क्वेश्चन जो है सर तक कर पाऊँ। विकास कुमार जी का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी सिक्योर आवर सिस्टम लाइक पीसी मोबाइल फ्रॉम बीइंग थ्रेट बीइंग हैक, एक्चुअली ही इज आस्किंग कि वो उन्हें थ्रेट ना हो, तो हम कैसे अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी एनालाइज द वल्नरेबिलिटीज। देखिए, जैसा सिक्योरिटी का लाइक फंक्शन है, तो मतलब मैं आपको 1000 चीजें बता सकता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप अगर देखते हैं, तो अगर आपका इंटरनेट ही इनसिक्योर है तो फिर आपका सिस्टम तो सिक्योर हो ही नहीं सकता। इंटरनेट ही अगर इनसिक्योर है पर एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है, पासवर्ड मैनेजमेंट आप करेक्टली नहीं करते, ठीक है। और सर पासवर्ड, अपडेटेड या सर पासवर्ड मैनेजमेंट मींस मतलब हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं कंपनी में, आप देखते होंगे पासवर्ड में लोग हमेशा ही कहते हैं कि भाई आप जब भी भरते हो, इट्स वेरी इजी थिंग, अगर आप ध्यान दो तो हमेशा ही कहते हैं कैप्स लॉक यूज करो, 8 डिजिट का रखो। अभी जो नॉर्मल थ्रेड्स हैं, मैंने कहा ना थ्रेड्स के हिसाब से स्टैंडर्ड बदलते हैं। अभी जो नॉर्मल थ्रेड्स हैं उसमें कहते हैं कि भाई पासवर्ड में एक कैप्स लॉक रखो, एक मतलब स्पेशल कैरेक्टर रखो, मिनिमम 8 डिजिट का रखो। इसके हैक होने के चांसेस अभी कम है। अब ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह का सिस्टम है। जैसे हमारे कंपनीज के सिस्टम पे हम वर्क करते हैं, वी कांट सेंड एनी डेटा, वहाँ डेटा लॉस प्रिवेंशन डीएलपी अप्लाई होता है। तो अगर मैं उस पर जीमेल ओपन करता हूँ तो बहुत बार जीमेल नहीं खुलेगा। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक कि मेरे सिस्टम पे वीडियो इनेबल नहीं होगा। जो मैंने जब किया था तो शायद वीडियो इनेबल होगा नहीं। हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें लगाई जा सकती हैं। लोग मतलब पर्सनल सिस्टम पे उतनी सारी जरूरतें हैं नहीं, पर्सनल सिस्टम पे उतनी सारी जरूरतें हैं नहीं। मैं बस इतना कहूंगा कि पर्सनल सिस्टम के सेंस में कि आप सिक्योर इंटरनेट यूज करें। अगर कोई स्पैम मैसेज या कोई बल्क ईमेल इस तरीके का आता है, कोई क्या कहते हैं सस्पिशियस ईमेल आता है, तो वहां आपको किसी प्रोफेशनल कंपनी की तरह कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। सो डोंट ओपन दोज लिंक्स। वो सडनली आपका डेटा, सारा का सारा डेटा गायब कर देगा। इवन इट इज मोर वल्नरेबल इन टर्म्स ऑफ मोबाइल। कुछ भी आता है कि आप ये लिंक ओपन करें, अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है तो डोंट ओपन। आप कुछ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में, कोई लकी ड्रॉ के चक्कर में, कोई गेम के लिंक के चक्कर में कुछ भी आप उसको टच करेंगे, ओपन होगा एंड विल हैक योर सिस्टम। और उसके उसके अलावा मैं आपको 2-3 स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस यही हैं। पैच मैनेजमेंट करें आप, अगर कोई नया पैच आता है तो सिस्टम को अपडेटेड रखें, एंटीवायरस ढंग का यूज करें, लाइसेंस्ड। विंडो अगर आप वो यूज करते हैं क्रैक की हुई, तो फिर मैं उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो अगर विंडो अगर आपकी जेन्यून है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं अपना सिस्टम सिक्योर रखने के लिए। मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप करेंगे तो लाइक 99% चांसेस हैं कि आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। और इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स अबाउट हाउ यू शुड बी ऑल्सो टेक केयर ऑफ नो सिक्योरिटी हाइजीन। ये बिल्कुल एक हाइजीन की तरह है। जैसे आपको अपनी बॉडी को ठीक रखना है तो आप उनको प्रोटेक्टेड रखते हैं, बेहतर चीजें यूज करके, हाइजीन करके। उसी तरह से एक बॉडी है आपकी, जिसको अनवांटेड थ्रेट से आपको वो रखना है। उसके लिए जिस तरह से डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्राइब करता है, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल को सब प्रिस्क्राइब करेंगे। यू हैव टू कीप इट अपडेटेड, दैट्स ऑल। सर तो आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका है कि आप लोगों को जो भी अपने एंटीवायरस हैं उनको अपडेटेड रखना है, उनको क्रैक्ड वर्जन का यूज नहीं करना है। प्लस आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजुअली कई लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट का भी क्रैक्ड वर्जन ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चला देते हैं। तो ये सारी सारे चीजें के जो सारे है, हाँ जी सर, तो ये सारी सारे चीजें के आपके सारे। सिस्टम को वल्नरेबल बनाती हैं, और इससे आपके सिस्टम्स को हैक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप ओरिजिनल वर्जन यूज करते हैं, तो वहां पे आपको ये चांसेस नहीं होता। सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन
with by Aman Pandey. He is asking कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इन साइबर सिक्योरिटी. आई डोंट नो, मैं एक्चुअली अमन आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया. आई थिंक सर आप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही वांट्स नहीं टू नहीं, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. से. अमन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड बहुत बड़ा सेक्टर है जो आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा सेक्टर है. जैसे शुरुआत में हमने बात की कि डेटा सारे के सारे सेंटर ऑपरेट होते हैं. वहाँ पर सॉक है, नॉक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर होता है, सॉक होता है लाइक उसका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वहाँ पे. तो अभी जितनी हमने बातें की कि डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई होते हैं, आपको पीकेआई एक सेक्टर है, इंटरप्राइज. लास्टली जाके आज के टाइम पे ना कुछ भी साइलो यूज नहीं होता कि भाई एक चीज मेरी ये है, एक चीज मेरी ये है और सब अलग अलग वर्क कर रहे हैं. आजकल सब कुछ एक एंटरप्राइज है. हर चीज जो है मिलके एक एंटरप्राइज बन गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी अपने आप में एक पूरा फील्ड है. आप जाएं उसको गूगल करें, यू विल गो बरसक के कितनी चीजें हैं उसमें. इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एक अलग ही चीज है. और अगर मैं आपको बताऊं तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होता है, 12-13 तरह के ऑडिट होते हैं डेटा सेंटर में, तो दिस इज द मोस्ट वाइटल थिंग. अगर आप डेटा सेंटर में देखेंगे ना, आई वुड सजेस्ट आप ये जाके चेक करें कि डेटा सेंटर में क्या फर्क होता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4. तो आप हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो बनने लगे वो है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर ही है. तो आप अगर देखेंगे कि पहले कितना डाउन टाइम था और अब कितना डाउन टाइम है, एक डेटा सेंटर का एक ईयर में 17 मिनट का आउटेज अलाउड है. इससे ज्यादा हो गया तो वो मतलब डेटा सेंटर एसएलए के लायक नहीं है. इट इज मतलब ब्रीच ऑफ एसएलए. उसको वो नहीं कह सकते कि ये भाई टीयर 4 डेटा सेंटर है. हाइपर स्केल का मतलब आप समझो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, नॉट इवन इन गीगाबाइट, इट्स इन टेरा, रेगुलर ट्रैवल करता है इधर से उधर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है एंड अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही रहेंगी, हमेशा रहेंगी. ये मैं इसके बारे में कह सकता हूँ. कोई एप्लीकेशन आती है कि भाई पर्टिकुलर टैबलू आ गया तो बहुत नो धड़ाधड़ पैसा मिल रहा है, हो सकता है 5 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाए, कुछ और अच्छा आ जाए, लेकिन ये रहेगा. इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में भी ग्रो कर सकते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में भी ग्रो करते हैं आप. और आगे चल के जब आप बढ़िया मतलब 7-8 साल 10 साल पे पहुंचेंगे तो बिल्कुल की किसी चीज पे आप काम कर रहे होंगे. आई कैन टेल यू नाउ कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैं इसका प्रोफेशनल हूँ और आपका सीवी उसी वे में फ्लोट होगा कि भाई इस आदमी को ये चीज की मास्टरी है. जैसे में इन दैट. Okay, sir. I hope Aman you got your answer. Okay. So Amandeep Singh has one question. Guys, this will be we are just we will take only 2 more questions. तो आप लोगों के अगर कोई और questions हैं, because our session has to be end. कभी तो end होना है इसे. तो अमनदीप सिंह जी का क्वेश्चन है कि व्हाट्स द स्टेप 1 currently I am learning C++, then after completing C++ what should I do? So he's just asking कि जैसे as I asked sir कि how to start a career, so he's asking कि what is the step 1? उन्होंने C++ से रिलेट करके उसको क्यों पूछा है वो, मतलब उसका I think he's a मुझे student sir और he's मतलब currently he's learning only C++ actually in our छत्तीसगढ़ जो curriculum है वहाँ पे बच्चों को अमनदीप ये सेशन जब साइबर सिक्योरिटी के बारे में था तो मैंने आपको पहले ही इसका एक आंसर दिया है. अगर आप रिकॉल करो कि कुछ भी आप अगर साइबर सिक्योरिटी में करना चाहते हो तो स्पेसिफिकली उसके स्किल सेट पे आपको एक 6 महीना लगाना पड़ेगा. क्योंकि वही मैंने जो आपको बार बार कहा है कि ये अभी किसी भी कॉलेज के करिकुलम में स्पेसिफिकली नहीं है. मास्टर डिग्री में तो है कहीं कहीं, स्पेसिफिकली नहीं है. तो आप कुछ भी एक पकड़ो और आपको C++ आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन की तरफ देखो. पाइथन आपके लिए इजी रहेगा. डेटा सेट्स की आपको समझ होगी. वहां पर वो जाके लिस्ट और टपल हो जाते हैं. बाकी एक बार अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ है तो आप दूसरा भी कर सकते हो. Okay. तो मुझे लगता है कि आप अगर आपका प्रोग्रामिंग में या लॉजिकल एबिलिटी आपकी अच्छी है, उसमें दिमाग चलता है तो आप उसको चूज करो. अब it is not a like a suggestion from my side, but I'm just telling you that मैंने अभी जितनी बातें हैं उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रखी हैं. आप और मैंने जैसा अंकित को भी कहा कि एक बिगनर
गाइडेंस होना चाहिए 10-15 दिन का। वो एक लोग बहुत बार कहते हैं कि यार इसमें कुछ सिखा तो नहीं रहे हैं तो हम क्यों पे करें, लेकिन आपको किस में करियर बनाना है समझने के लिए अगर आप पे करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है। क्योंकि अगर आप 6 महीने स्पेंड कर दें, टाइम इज मनी, 6 महीने कहीं स्पेंड करते हैं, पढ़ लें, उसमें पैसा भी लगाएं, अपना टाइम भी लगाएं, फिर आपको लगे यार इसमें तो ना मेरा इंटरेस्ट नहीं है या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, उससे बेटर है आप 10-20 चीजों को के तरफ एक्सपोज हों और आप फिर खुद तय करें कि मैं इसमें करूंगा। आप खुद डिसीजन लेंगे तो एज ए मेंटोर, जो मैं अपनी टीम में मेंटरिंग करता हूँ अपने लोगों को, तो मैं आप खुद डिसीजन लेंगे तो लोग अपने डिसीजन पे बहुत बार खड़े होते हैं। बहुत अदरवाइज लोग कहते हैं कि यार तो हमको पापा ने कहा था मैं इंजीनियरिंग कर ली, या कुछ नहीं मिल रहा था तो मैकेनिकल ले लिया। सो मैं यही कहूंगा कि आप हर चीज को एक बार टटोल के देखें। मैंने बहुत चीजों पे बात की है और मैं जैसे अंकित को सजेस्ट किया कि अगर आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं तो आप एक बिगनर सेशन चलाएं इनके लिए 10-15 दिन, उस पर काम हो 2 वीक एटलीस्ट, तो आपको 50 चीजें पता चलेंगी, आप कर सकते हैं। यस सर। अमन, एक्चुअली गाइस हम लोग जल्दी ही हमारा एक मॉड्यूल रेडी कर रहे हैं। आप लोगों तक ये मॉड्यूल हम जल्दी ही पहुंचाएंगे रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी में आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। गाइस लास्ट एक और क्वेश्चन होगा, अमन का एक और क्वेश्चन आया है। सो क्लाउड कैन बी हेल्पफुल इन इंफ्रास्ट्रक्चर इफ पीपल इज वर्किंग ऑन बैकअप एंड स्टोरेज फील्ड। श्योर, उसमें उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हो ना, मैंने अभी एसएपी का एग्जांपल दिया आपको। एसएपी हाना इज अ डेटाबेस वर्किंग ओवर क्लाउड, उसका उसका डेफिनेशन ही यही है। तो उससे डेटा जो है फास्टर मूव करता है, और डेटा क्लाउड पे रखना जो है बहुत बार इजी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बचता है। और बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हाइब्रिड भी रखती है, कुछ क्रिटिकल डेटा जो है अपने सर्वर्स पे रखती है और कुछ डेटा जो है क्लाउड पे रखती है। तो बहुत लोग हाइब्रिड मॉडल भी यूज करते हैं, सर्वर्स भी और क्या कहते हैं क्लाउड। तो बैकअप तो ऑब्वियसली जहां डेटाबेस है वहां बैकअप का भी बैकअप है। आई होप अमन। मैंने डीसी और डीआर की भी बात की थी। तो डीसी डेटा सेंटर आपका रनिंग डेटा होता है, डिजास्टर रिकवरी में जो आप डेटा रखते हैं वो आपका बैकअप ही है। अगर इसको कुछ हो गया तो हम उसको वहां पर हमारा डेटा है। Okay, sir. Guys, any more question? This will be the last question for this whole session. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है प्लीज। ओके, आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर लगभग दे दिया है। तो सर थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग विद अस। और आपने काफी कुछ आज हमें बताया है रिगार्डिंग व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, क्या क्या फील्ड्स हैं। एक्चुअली इसकी नॉलेज मुझे भी नहीं थी और आज मैंने भी खुद पर्सनली इस पे काफी कुछ सीखा है। तो इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के लिए गाइस हम लोग जल्दी ही मॉड्यूल लेकर आ रहे हैं रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, क्या आपको लर्न करना है क्या नहीं करना है। और जैसा कि कुणाल सर ने हमें सजेस्ट किया है, हम एक बिगनर्स गाइड भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो इसी के साथ आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन। और अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई एक क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, ये लास्ट है, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। ओके, ओके ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल्सो ए वेरी थैंक्स टू मिस्टर विनय सर। आपने भी यहाँ पर आकर बच्चों का एक उत्साह बढ़ाया है और उसके साथ साथ एक मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भी साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ हम यहाँ पर काम कर सकते हैं साथ में, ताकि हम एक ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए क्रिएट कर सकें। सो गाइस थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच for this session. Thank you, Kunal sir. Thank you, Vinay sir. And thank you all dear students. Thank you, sir. Thank you.